नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IAD टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की तरफ। तेलंगाना असेंबली के बजट सेशन के चलते बहस व मुबाहिसों के दौरान आज हुकूमत की जानिब से कई बिल्स ऐवान में पेश किए गए, जिन पर तबादले ख्याल किए जाने के बाद इन्हें ख़तियत भी दे दी गई। रेवेन्यू रजिस्ट्रेशन और रिलीफ के लिए 1300 करोड़ का बजट लाया गया। कमर्शियल टैक्सेस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए 2700 करोड़ से जायद का बजट रखा गया। एक्साइज एडमिनिस्ट्रेशन के लिए 1700 करोड़ से जायद के बजट को तक़वियत दी गई। ट्रांसपोर्ट की वजारत के लिए 100 करोड़ से जायद का बजट रखा गया। वजारत ज़राअत के लिए 15 लाख करोड़ से जायद का बजट पास किया गया। एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज, डेयरी डेवलपमेंट और सिनेमाटोग्राफी के लिए 1,45,000 करोड़ से जायद का बजट को मंजूर किया गया और BC वेलफेयर, फूड एंड सिविल सप्लाईज और कंज्यूमर अफेयर्स के लिए असेंबली में 1,50,000 करोड़ का बजट मुख्तस किया गया। अब देखना है कि ये सारा बजट आएगा कहां से, जबकि खजाना खाली रहने की इत्तलाएं माहौल में गश्त करती रही हैं। महकमा पुलिस के चालान से वैसे ही अवाम पहले ही से काफी बेजार भी हो गई है। I beg to move that the government be granted a sum not exceeding rupees 1369 crores 21 lakhs 36,000 under demand number 5, revenue, registration and relief. I request the Minister for Excise to move the demand number 6, Excise Administration. Speaker sir, I beg to move that the government be granted a sum not exceeding rupees 170 crores 83 lakhs 23,000 under demand number 6, Excise Administration 2019-20. I request the Minister for Animal Husbandry on behalf of Chief Minister to move the demand number 7, Commercial Tax Administration. Speaker sir, on behalf of Honorable Chief Minister, I beg to move that the government be granted a sum not exceeding rupees 275 crores 16 lakhs 18,000 under demand number 7 for commercial taxes. I request the Minister for Transport to move the demand number 8, Transport Administration. Speaker sir, I beg to move that the government be granted a sum not exceeding rupees 100 crores 74 lakhs 26,000 under demand number 8, Transport Administration. I request the Minister for Home to move the demand number 10, Home Administration. Speaker sir, I beg to move that the government be granted a sum not exceeding rupees 4,955 crores 77 lakhs 98,000 under demand number 10, Home Administration. Thank you. I request the Minister for Agriculture and Cooperation to move the demand number 27, Agriculture, demand number 30, Cooperation. Honorable Speaker sir, I beg to move that the government be granted a sum not exceeding rupees 92 crores 66 lakhs 42,000 under demand number 30, Cooperation. I request the Minister for Animal Husbandry. मैं आज जो बजट के ऊपर मैं कहना चाह रहा हूँ, तेलंगाना के वजीर सईद इटाला राजेंद्र ने आज ऐवान असेंबली में एक सवाल के जवाब में बतलाया कि तेलंगाना के अलग हो जाने तक मुत्तहदा रियासत में सिर्फ 5 गवर्नमेंट के मेडिकल कॉलेजेस हुआ करते थे और TRS हुकूमत की काविश से मरकज ने ESIC के तहत रियासत के लिए मजीद मेडिकल कॉलेजेस मंजूर किए, जो कि सिद्दीपेट, महबूब नगर, नलगोंडा और सूर्यापेट में खोले गए हैं और सभी में MBBS के लिए 150 सीटें मुख्तस हैं। इसके अलावा TRS पार्टी के सभी MPs ने पार्लियामेंट में रियासत के बीबी नगर में AIIMS कायम करने का मुतालबा भी करके रखा हुआ है। लिहाजा ताहाल रियासत तेलंगाना में 11 गवर्नमेंट के मेडिकल कॉलेजेस और 23 खानगी कॉलेजेस चल रहे हैं, जिनमें 4,790 सीटों के मिनजुमला 1,640 गवर्नमेंट सीट्स हैं। हुकूमत ने इन सभी कॉलेजेस में कई मकलूआ जायदादों को भी साबिका में पुर किया हुआ है ताकि तुलबा को डॉक्टरेट में महारत दिलाई जा सके। ఎక్కడ కూడా ప్రొఫెసర్ల కొరత కానీ మిగతా స్టాఫ్ కొరత లేదని చెప్పి మనం చేస్తున్న అధ్యక్ష
అక్కడక్కడ మనకి ఈ చిన్న స్టాఫ్ ఏదో క్లీన్ చేసే వాళ్ళు కానీ అటెండర్లు కానీ రకరకాల పోస్టులు ఏవైతుంది అధ్యక్ష, వాటి కోసం కలెక్టర్ గారి ఆధ్వర్యంలో వారి చైర్మన్ గిరిలో ఆయా మెడికల్ కాలేజీలు కానీ ఆయా హాస్పిటల్ కానీ వాళ్ళకు అవసరమైనటువంటి డాక్టర్లు కానీ చిన్న చిన్న హాస్పిటల్లో ఉన్నటువంటి పిఎస్సీలో ఉన్న డాక్టర్లు కానీ టీబీబీపీలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళకు కానీ డాక్టర్ల కొరత లేకుండా ఇతర సిబ్బంది కొరత లేకుండా వాళ్ళు వాళ్ళు రిక్రూట్ చేసుకునే అధికారాలు ఇచ్చాం అధ్యక్ష. మెడికల్ కాలేజెస్లో గవర్నమెంట్ సైడ్ కూడా ఇవాళ డాక్టర్ల నియామకం కోసం కూడా మాకు మెడికల్ రిక్రూట్మెంట్ బోర్డు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి మొన్న అప్రూవ్ చేసింది కాబట్టి ఇక్కడ కూడా ఇబ్బంది లేకుండా చేస్తామని చెప్పి మనవి చేస్తుంది అధ్యక్ష. అంటే పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ సీట్లలో కూడా అధ్యక్ష 692 సీట్లు ప్రభుత్వంలో ఉండడమే కాకుండా నిమ్స్ 80 సీట్లు ఉన్నాయి అధ్యక్ష. అదేవిధంగా సూపర్ స్పెషాలిటీ సీట్లు కూడా అధ్యక్ష 78 సీట్లు మనకు ఉన్నాయి అధ్యక్ష. నిమ్స్లో 54, మొత్తం కలిసి 132 సీట్లు అధ్యక్ష. అంటే గుణాత్మకమైన మార్పు. ఒక్క ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాతనే దాదాపు పీజీ సీట్ల అధ్యక్ష 298 పీజీ సీట్లు వచ్చినాయి అధ్యక్ష. పీజీ సీట్లు రావడం అంటే అంత ఈజీ కాదు అధ్యక్ష. అన్ని రకాల సౌకర్యాలు కల్పిస్తే తప్ప, అన్ని రకాల ప్రొఫెసర్ల పోస్టులు కానీ ఇతర పోస్టుల నియామకం చేస్తే తప్ప వాళ్ళు తృప్తి చెందితే తప్ప రాదు. కాబట్టి అంత గొప్పగా ఈ మెడికల్ తీర్చిదిద్దడం కాబట్టే మనకి పీజీ సీట్లు కూడా పెరిగాయని చెప్పి తమ ద్వారా విజ్ఞప్తి చేస్తున్న అధ్యక్ష. ఇలా గౌరవ సభ్యులకు ఇలా అందరూ కోరినట్టుగా ఒకసారి కాలేజ్ వస్తే అధ్యక్ష 650 బెడ్ల హాస్పిటల్ వస్తుంది అధ్యక్ష. ఆ 650 బెడ్ల హాస్పిటల్లో అన్ని రకాల సిటీ స్కాన్లు కావచ్చు, ఎంఆర్ఐ స్కాన్లు కావచ్చు, సూపర్ స్పెషాలిటీ స్పెషలిస్ట్ కావచ్చు. ఒక్క మాట చెప్పాలంటే ఇవాళ గాంధీలో ఏమున్నాయో రేపు ఆ మెడికల్ కాలేజీలో కూడా అది వస్తుంది. ఇవాళ ఉస్మానియాలో ఏ ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాయో అవి వస్తాయి. కాబట్టి ఒకసారి ఆ కాలేజీ రావడంతో అవన్నీ కూడా వస్తాయి. కాబట్టి గౌరవ సభ్యులు ఇవన్నీ అంచెలంచెలుగా వస్తాయని చెప్పి తమ ద్వారా విజ్ఞప్తి చేస్తారు అధ్యక్ష. ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మెడికల్ ఎడ్యుకేషన్ ఒక గొప్ప క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్ కేంద్రంగా తీర్చిదిద్దడంలో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి సూచనల సలహాలతోటి ముందుకు తీసుకుపోతామని చెప్పి తమ ద్వారా విజ్ఞప్తి చేస్తారు అధ్యక్ష. Already 11 over. Year after only single supplementary. हमारे मुल्क में कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स की जहां धूम है, वहीं इनकी नाकामियों की बात भी कभी कभार समाज में आ जाती है, लेकिन इसके बावजूद भी इनके नफसा नफसी वाले माहौल पर कोई रोक टोक नहीं है। अभी शहर हैदराबाद के उप्पल में वाक़े कॉरपोरेट मैट्रिक्स हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज एक मरीज़ के फौत हो जाने के बाद इंतज़ामिया ने मरीज़ के रिश्तेदारों को 1.5 लाख से ज़ायद का बिल पकड़ा दिया और उसे अदा करने के बाद लाश हवाले करने की बात सामने लाई है। फौत हो जाने वाले मरीज़ की वालदा ने बतलाया कि 34 साला क्रांति कुमार को गुर्दे के आर्जे के तहत दवाखाने में शरीक करवाया गया था, लिहाजा इलाज के दौरान इंतज़ामिया ने पहले ही लाखों रुपये हथिया लिए और अब मरीज़ के फौत हो जाने के बाद 1,60,000 का मुतालबा कर रहे हैं। वाज़ेह रहे कि ऐसे हज़ारों वाक़यात तरक्की के नाम पर कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स के लूटम लाट से समाज मुतासिर रहा है और ये अपने तौर पर समाज में गश्त करती भी रही हैं। फिर भी अवाम कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स को मौके देती है। इनमें गलती पर कौन है, इस पर अब सवालिया निशान आ गया है। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। हमारे समाज के मौजूदा माहौल में नौजवानों में बेहयाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि पता नहीं इसकी वजह आबादी में इजाफा है या फिर माँ बाप की बच्चों के सामने अलानिया बेराह रवी इसका सबब बनी हुई है और खामखा के वैलेंटाइन डे का नाम अलग से बदनाम करके रख दिया गया है। खबर है कि हमारे शहर हैदराबाद के कई तालीमी इदारों वाले मशहूर इलाके दिलसुख नगर की सड़क पर कॉलेजेस के बहुत सारे लड़के लड़कियां खुलेआम मोहब्बत के नाम पर गले मिलते और एक दूसरे से चेहरे मिलाते देखे गए और यही नहीं, पैदल राहरों के लिए अड़चने भी पैदा करते रहे और कोई भी उनका बाल बेका भी ना कर सका। हालांकि महकमा पुलिस अरसे दराज से बच्चा मजदूरी, चबूतरा मिशन, खुमारबाजी और मनशियात की निगरानी वगैरह में जरूरत से ज्यादा हरकियाती रहा है, तो क्या अखलाकी बुराइयों और गिरावट के लिए महकमा पुलिस के पास कोई खाना खाली नहीं है? इस पर अब सवालिया निशान आ गया है। वैसे एक बात और भी साबित हो रही है कि जब से शहर हैदराबाद के फहाशी के अड्डे के तौर पर मशहूर हो जाने वाले संजविया पार्क में नौजवान जोड़ों के दाखिले पर पाबंदी लगा दी गई है, तब से अब ये हरकतें जगह जगह फैल कर रह गई हैं। तेलंगाना के जिले जनगांव के एक छोटे से गांव श्रीपुरम में आज बरकी तार की जद में आकर एक चरवाहे शीनू के करीब 28 बकरे मौत के घाट उतर गए और सारे गांव में वावैला मच गया। इस मौके पर गांव के कुछ बड़ों ने हुकूमत से बरकी तारों को गांव के बीच से गुजारने के बजाय बाहर से लगवाने का मुतालबा पेश किया। यह हादसा एक ऐसे वक्त में दो चार हुआ जबकि एक वजीर ने हुकूमत की बकरा बांटो स्कीम का कल ही ऐलान किया था। अब ऐसे में ऐसे हादसों के लिए भी हुकूमत क्या कर सकती है, इसकी शमूलियत जरूरी हो गई है। और अब कुछ बातें खूबसूरती और खूबसूरत खवातीन की भी। डॉक्टर शोभा नखाना, जी हाँ, यही है खूबसूरत खातून जिन्होंने तमिलनाडु के चेन्नई में मुनक़िदा मिसेस इंडिया सुपर क्लासिक 2019 ब्यूटी कॉन्टेस्ट के मुकाबले हुस्न में हिस्सा लेते हुए ये मुकाबला जीतकर हसीन खातून बन गई हैं। और तो और ये हैदराबाद के पुराने शहर से ताल्लुक़ रखती हैं। इनके ताल्लुक से बताया गया है कि ये न सिर्फ एक फिजिशियन हैं बल्कि एक डायबिटोलॉजिस्ट भी हैं और कई बार हुस्न के मुकाबलों में हिस्सा लेते हुए रनर बनी और अब की बार ये मुकाबला जीत ही लिया और अब वो पुराने शहर के स्लम इलाकों में फलाही व रिफाई खिदमात अंजाम देना चाहती हैं, जबकि इससे कबल इन्होंने कामाटीपुरा के गवर्नमेंट अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर में अपनी खिदमात अंजाम दे चुकी हैं। हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर शोभा देवी नखाना हूँ। मैं अपने तेलंगाना के मिसेस इंडिया तेलंगाना का सुपर क्लासिक राउंड विन होकर नेशनल्स में गई थी। अब मिसेस इंडिया नेशनल्स में सुपर क्लासिक राउंड में विन हो चुकी हूँ। मैं एक डायबिटीज स्पेशलिस्ट हूँ। मैं 20 साल यूके में काम करी थी। अब अपने हैदराबाद में मेरे सर्विसेज देने के लिए मैं वापस आ गई और अपने ओल्ड सिटी के इलाका में कई साल में काम करी थी और अब वहाँ हाँ डायबिटीज स्पेशलिस्ट की जैसा कामाटीपुर इवेंट, ये तो चेन्नई में हुआ था। नेशनल्स की इवेंट चेन्नई में हुआ था और वो कल रात में हुआ था और वहाँ से मैं अभी आई हूँ। और ओल्ड सिटी में मैं बहुत साल काम करी थी जो अपने हैदराबाद के पेशेंट्स की भलाई के लिए, और वहाँ पे अर्बन स्लम्स में भी मेरा काम चलते रहता है। जो डिप्राइव्ड चिल्ड्रन रहते हैं अर्बन स्लम्स में, उनकी भलाई की सोचती हूँ मैं। और ये मिसेस इंडिया प्लेटफॉर्म भी खाली ब्यूटी पेजेंट नहीं है, वो इम्प्रूवमेंट ऑफ सोसाइटी। जिस तरह हम लोग जो पेजेंट में हैं सोसाइटी को कैसा हेल्प कर सकते हैं, तो सब वॉक्स ऑफ लाइफ में कंटेस्टेंट्स थे, सब दूसरे चीज़ें एक तरह से हेल्प करते रहे सोसाइटी में। और ये प्लेटफॉर्म में रह के मैं खाली अपना स्टेट में नहीं, मैं नेशनली और इंटरनेशनली भी ये ले जाना चाहती हूँ, क्योंकि मैं हर वक्त ये डायबिटिक्स रिसर्च के साथ दूसरे इंटरनेशनल कंट्रीज़ में जाते रहती हूँ। मेरा रिसर्च अब
दिसंबर में इंटरनेशनल डायबिटिक फेडरेशन में डिस्प्ले होने वाला है। तो ये बात, जैसे मिसेस इंडिया की बात मैं हर जगह लेना चाहती हूँ कि ये प्लेटफॉर्म खाली ब्यूटी की नहीं होती है, ये सर्विस टू सोसाइटी होती है इन डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ। सो आई एम गोइंग टू टेक दैट फॉरवर्ड एंड आई होप ऑल ऑफ यू विल जॉइन मी इन सच एन एंडेवर। थैंक यू। तेलंगाना असेंबली के बजट सेशन के चलते कुल-हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हल्का याकुतपुरा के एमएलए अहमद पाशा कादरी ने आज 0 आवर के दौरान हुकूमत को बाखबर किया कि जिले संगारेड्डी के हुदूद में आने वाले इलाके कोमपल्ली की मशहूर ईदगाह की 5 एकड़ अराजी पर लैंड ग्रैबर्स कब्जा जमाए बैठे हैं। इस सिलसिले में कई बार मुकामी पुलिस को खबरदार किया गया, कई शिकायतें भी दर्ज करवाई गई और साथ ही वक्फ बोर्ड की तवज्जो भी इधर लाई गई, लेकिन ताहाल इसका कोई हल नहीं निकला। लिहाजा एमएलए मौसूफ ने हुकूमत से मुतालबा किया कि वहाँ की ईदगाह की अराजी का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। इस मौके पर हुकूमत के वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने इन्हें तयक़ुन दिया कि हालात की जानकारी लेते हुए वो ज़रूरी कार्रवाई करेंगे। कोमपल्ली विलेज मनपल्ली मंडल में जो संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है, 229 सर्वे नंबर ये खदीम ईदगाह का जो 4 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन है और इस पर गज़िट है, इंदराज है औकाफी फेरिस्त में 1982-1983 के उसमें, लेकिन इतना 150 साल खदीम ईदगाह उस पर गौसे पाक का चिल्ला भी है, लेकिन एक अरसे से वहाँ पर कुछ लोग उस पर काबिज होकर वहाँ पर नाजायज़ कब्जे करके और मजीद कब्जे करने की कोशिश कर रहे। मैं हुकूमत से मेरी दरख्वास्त है कि अजला में जितने भी चिल्ले ईदगाहें हैं उसका तहफ़्फ़ुज़ करे और जो चीज़ नोटिफाई है वक्फ बोर्ड के लिए, वक्फ बोर्ड का इंदराज है, उसके ऊपर हुकूमत सख्ती से अमल करते हुए कब्ज़ों को बर्खास्त कराए। इस सिलसिले में नकीब मिल्लत असदुद्दीन अवैसी साहब ने कलेक्टर को भी तवज्जो दिलाई है। मैं आपके ज़रिए हुकूमत से ख्वाहिश करूँगा कि वो ईदगाहों के नाजायज़ कब्ज़ों को फौरी बर्खास्त करे, वरना मुकामी अफराद एहतजाज करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, उसको हमने रुका के रखा है। आपका काम है कि ईदगाह के लिए नाजायज़ कब्ज़ों को बर्खास्त करे, ईदगाह की हिफाजत करे। शुक्रिया। గౌరవనీయులు పాషా ఖాద్రి గారు ప్రస్తావించినటువంటి అంశం నోట్ చేసుకున్నాను అధ్యక్ష. ముఖ్యమంత్రి గారికి ఈ విషయం తెలియజేయబడుతుంది అధ్యక్ష. కేపీ వివేకానంద గారు. कुल-हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हल्के कारवान के एमएलए कौसर मोहिउद्दीन ने आज असेंबली के 0 आवर में शहर के तफरीही मुकामात पर सयाहों की सहूलियात के फुकदान पर सवाल उठाए और कहा कि शहर हैदराबाद सयाहों के लिए बड़ा ही पुरकशिश मुकाम रहा है, लेकिन कई सयाहों के ऐसी जगहों पर खातिर खास सहूलतें मैसर नहीं रहने पर अब इनकी आमद में कमी वाक़ई हो गई है, जिससे हुकूमत का रेवेन्यू भी शायद गिर गया है। इस बात पर वज़ीर सयाहत ने उन्हें तयक़ुन दिया कि वो ज़रूर इस तरफ तवज्जो देंगे। जो टूरिस्ट के लिए, चाहे वो गोलकुंडा हो या 7 गुम्बद हो या 4 मीनार हो या मक्का मस्जिद हो या खिलवत हो या दीगर मकामात पे जो हमारे हैदराबाद और रियासत तेलंगाना के जो टूरिस्ट पॉइंट को जो आते हैं, वहाँ पर जो टूरिस्ट के लिए कोई चीज़ की सहूलत नहीं दी जा रही है। मैं आपके ज़रिए हुकूमत को बताना चाह रहा हूँ और ख़ास तौर से चाहे वो गोलकुंडा हो या 4 मीनार हो, वहाँ पर पार्किंग यार्ड की ज़रूरत है। मैं आपके ज़रिए हुकूमत को बताना चाहता हूँ। మినిస్టర్ గారు. అధ్యక్ష, గౌరవ శాసనసభ్యులు అయినటువంటి క్వశ్చన్ నోట్ చేసుకుంటాం అధ్యక్ష. అసెంబ్లీ సమావేశాల తర్వాత ఆ శాసనసభ్యులతో మీటింగ్ కూడా పెట్టి వాళ్ళ అభిప్రాయాలు తీసుకొని సాధ్యమైనంత వరకు అవి కంప్లీట్ కావాలని ప్రయత్నం చేస్తాం అధ్యక్ష. భానుమతి హరిప్రియ. మా ప్రయత్నం. कुल-हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बहादुरपुरा के एमएलए मौज़म खान ने आज ऐवान असेंबली में बल्दी नज़्म व नस्क़ के वज़ीर केटीआर को तवज्जो दिलाई कि अरसे दराज हुआ बहुत सारे हलकों के एमएलएज़ ने अपने अपने हलकों में देरीना मतलूब और नए ज़रूरी कामों के फाइल्स बल्दिया को सौंप दिए थे, लेकिन वो अभी तक जैसे के तैसे पड़े हुए हैं और आवाम अरसे दराज से दिक्कतों का सामना करने पर मजबूर है। लिहाजा इस सिलसिले में जल्द से जल्द कार्रवाई शुरू करने की इन्होंने अपील की। इस पर केटीआर ने उन्हें तयक़ुन दिया कि वो इस सिलसिले में जल्द ही कोई कार्रवाई करेंगे। या चंद्रायन गुट्टा या दीगर जितने भी कॉन्स्टिट्यूंसीज है जीएचएमसी लिमिट्स के अंदर, सर हर एमएलए अपने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर अपने एरिया के डेवलपमेंट के लिए
जहाँ पर भी तकलीफ है सारे प्रोपोजल्स ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर साहब का ने, जोनल कमिश्नर का ने हम प्रपोज कर चुके हैं, मगर पिछले 8 महीने से तकरीबन हर कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर फाइल्स रुके हुए हैं और वो सैंक्शन नहीं हो रहे हैं। सबसे बड़ी तकलीफ ये है सर, आज 6 महीने हो गया ये साल का बजट आकर, एक सीडीपी फंड जो एमएलएस को मिलता था, वक्ते वाहिद जो इमरजेंसी में कामा होते थे, पब्लिक को जो तकलीफ होती थी, हम हमारे सीडीपी फंड के जरिए इमीडिएटली वो कामों को करा सकते थे। वो फंड भी रुकने की तरफ से हम प्रपोज कर चुके हैं। जो भी इमरजेंसी वक्त पे छोटे छोटे काम है या जो भी काम कर चुके हैं, आज तक वो सारे फाइल्स पूरे कॉन्स्टिट्यूंसीज के ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर साहब का ने, जोनल कमिश्नर्स का ने रुके हुए हैं। मैं आपके जरिए म्यूनसिपल मिनिस्टर साहब से ये गुजारिश करता हूं कि आप इमीडिएटली इंस्ट्रक्शंस दीजिए, जितने भी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर डेवलपमेंट के लिए जितने भी फाइल्स रुके हुए हैं, इमीडिएटली वो सैंक्शन करिए। आवाम को बेहद तकलीफ हो रही है, उस तकलीफ को देखते हुए आज मैं इस ऐवान में आपके जरिए मिनिस्टर साहब के सामने ये मुतालबा रख रहा हूं। मिनिस्टर ऑनरेबल जनाब मोहसन खान साहब ने जो अभी जीएचएमसी के दायरे में जहां पे भी पेंडिंग वर्क्स और पेंडिंग सैंक्शन जितने भी हमारे पास जीएचएमसी में और म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन में पेंडिंग है, हमारे जहन में लाने के लिए आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूं। और जो भी काम तेजी से, तरक्की के काम जो भी तेजी से करना है वो मैं करवाऊंगा। मैं एक मीटिंग भी बुला लूंगा आपके साथ, मैं वायदा करता हूं। शहर हैदराबाद के गोशामहल डिवीजन के बी ब्लॉक के कांग्रेसी सदर श्याम सिंह की क़ियादत में कांग्रेस के बहुत सारे कारकुनों ने आज रोटा वायरस वैक्सीन का कैंप लगवाया। इलाके के मशहूर समाज घर भवन में मुनक़िदा इस कैंप में इन तमाम लोगों ने हिस्सा लिया। डॉक्टर के सक्सेना, सिस्टर सुमलता, आशा मयूरी, सुजाता, शालिनी, अरुणा, कल्पना, इनके साथ साथ कांग्रेस के भी बहुत सारे लीडर्स, शंकर भाई, कैलाश सिंह, छोटे लाल वगैरह भी वहां मौजूद रहे। मजलिस के रुकन असम्बली मुमताज अहमद खान ने पुराने शहर को दरपेश मसाइल को असम्बली में उठाते हुए हुकूमत से इनके हल पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि पुराने शहर में कई मकामात पर शराब की दुकानात गैर मजाज तौर पर परमिट रूम चला रहे हैं। शराब पीकर सड़क पर हंगामा करने के वाक़यात में भी इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत ने असम्बली में यकीन दिलाया था कि बदलागुड़े के आरटीओ ऑफिस में रोड ट्रैक तामीर किया जाएगा ताकि ड्राइविंग लाइसेंस बनाने वालों को सहूलत मिल सके, मगर अब तक ये वादा पूरा नहीं हुआ है। पुराने शहर के लोगों को राजेंद्र नगर के आरटीओ ऑफिस को जाना पड़ा है। मुमताज अहमद खान ने और भी कई मसाइल की जानिब हुकूमत की तवज्जो मबज़ूल करवाई। While presenting the state budget for 2019 to 20, Chief Minister has given a detailed presentation on the resource crunch force on the state by the economic slowdown in the country. The state budget has raised allocation for some schemes and flagship programs and reduced the allocation for various departments and non-essential activities. The CM has also hinted the prospect to stagnation in the state's own tax and non-tax revenues. In the current year, GST collections are showing a slight decline. Overall, the growth in the collection of commercial tax, including VAT on petroleum products and liquor, has come down to 6.6% in the first 4 months of the current year, April to July 2019. Similarly, the state excise revenue growth has fallen to 2.6%, indicating the bad health of the economy. Stamp and registration revenue growth has also declined to 17.5%, and motor vehicle tax growth has slumped from the minus to present. The non-tax revenue growth has
declined steeply to minus 14.2%. The trends are certainly very discouraging. I compliment the government that despite that alarming scenario, the state budget has made higher allocation for farm and allied sector. Financially assistance under Raitu Bandhan scheme has been raised rupees 10,000 per acre per annum, and the CM Saab has assured that the scheme would continue with any changes. For Raitu Bandhu, Raitu Bima. रियासती वजीर फाइनेंस टी हरीश राव ने कहा है कि रियासत में आइंदा खरीफ तक 9.93 लाख हेक्टेयर अराजी को ज़ेर-ए-आब लाने का मंसूबा है और इसके लिए 2019 और 20 के बजट में 8,356 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। उन्होंने असेंबली को बताया कि जारी माली साल के दौरान आबपाशी पर 20,668 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। उन्होंने मजीद बताया कि कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन स्कीम से नलगुंडा, सूर्यापेट और कोदाड़ को पानी की सरबराही के फायदे नजर आने लगे हैं। डेलीगेशन కూడా మరి ఈ రాష్ట్రానికి వచ్చి మన మెదక్ జిల్లా తూప్రాన్, నర్సాపూర్ ప్రాంతంలో ఉండేటువంటి మిషన్ కాకతీయ చెరువులను చూసి వారు కూడా అభినందించడం జరిగింది అధ్యక్ష. మరి ప్రపంచంలోనే పేరున్నటువంటి నేషనల్ జియోగ్రఫిక్ ఛానల్ గుడ్లకు దిగుబడి పెరిగింది, రసాయనిక ఎరువుల వాడకం తగ్గింది, ఇలా అనేక ఫలితాలు సాధించాం అధ్యక్ష. అయితే వారు అడిగినట్టుగా అరవింద్ పనగడియా గారు నీతి ఆయోగ్ తరఫున కేంద్ర ప్రభుత్వానికి 5,000 కోట్ల రూపాయలు ఇవ్వమని రికమెండ్ చేసినప్పటికీ ఒక్క రూపాయి కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇవ్వలేదు అధ్యక్ష. అనేక సందర్భాల్లో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు, నేను కూడా అప్పట్లో నీళ్ల మంత్రిగా మరి గడ్కరీ గారిని, ఉమాభారతి గారిని అనేక సందర్భాల్లో కలిసి విజ్ఞప్తి చేసినప్పటికీ, అరుణ్ జైట్లీ గారిని కూడా మన పార్లమెంట్ సభ్యులు వెళ్ళి కలిసినప్పటికీ కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి ఈ మిషన్ కాకతీయ కార్యక్రమానికి మనకు ఏ రకమైన సహకారం అందలేదు అధ్యక్ష. వారు అడిగినట్టు గొలుసుకట్టు చెరువులకు సంబంధించి కూడా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు మరి ఇప్పటికే 3,000 పైగా ఓటీలు మంజూరు చేశాం. ఈ ఓటీల ద్వారా ఏంటంటే 9,000 చెరువులు మనం నింపగలుగుతున్నాం అధ్యక్ష. కాలమైనా కాకపోయినా, వర్షాలు పడ్డా పడకపోయినా మేజర్ ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్టులు, అదేవిధంగా లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ స్కీమ్లు, మీడియం ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్టుల కింద మరి కాలువల ద్వారా వెళ్లేటువంటి నీళ్లను ఆ పక్కన ఉండేటువంటి చెరువులు నింపడానికి మరి ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకొని ఆ ఓటీల నిర్మాణం పూర్తయింది. ఇంకా ఎక్కడైనా ఏదైనా ఓటీలు కట్టవలసి ఉంటే కూడా మీరు ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకురండి. ముఖ్యమంత్రి గారి ఆలోచన ఒక్కటే, ప్రతి చెరువు కుంట కూడా నిండుగా ఉండాలి, మత్స్య సంపద పెరగాలి, భూగర్భ జలాలు పెరగాలి, మంచి పంటలు పండాలన్నదే ప్రభుత్వం యొక్క ఆలోచన. ఇంకా ఎక్కడైనా అవకాశం ఉంటే కూడా మీరు ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకురండి, తప్పకుండా కన్సిడర్ చేస్తాం. అనుగుణమైన సీసీ ఛార్జీల తగ్గింపు అంటే కరెంట్ ఛార్జీలకు సంబంధించిన నియామక ప్రక్రియ పురోగతిలో ఉంది. బాలకృష్ణ గారు. అధ్యక్ష, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताजा अपडेट मिलते रहे।